Hello everyone, welcome to the channel Decoding UPSC Metrics. I'm going to learn the experience I gained from mains 2025, and we'll also try to see how my approach in 2025 mains was different from my previous attempts, that is in 2022, 2023 and 2024. तो इसमें हमें ये सीखने की कोशिश करेंगे कि क्या जो फंडामेंटल्स है वो मैंने चेंज किए हैं थ्रू आउट दीज years of preparation. In the first three attempts, more or less the strategy has remained the same. If we don't count the courses that I enrolled in and the quality of content or value addition I tried to do in the first three attempts, उसके अलावा the major strategy remained the same, and I think that is also the reason why my marks in GS also remained more or less stagnant in the same range. So these are some of the mistakes that I think that I committed over the three attempts in 2022 to 2024. The first mistake in the past attempt was focusing too much on the quality content and compromising the quantity of points. So the thing here I want to note down is, for example, if I had a question, say with respect to uh, any any dynasty or say any GS question, so I would just maybe write certain number of points. Say for example, the question which was asked about the Harappan civilization and the architecture with respect to it in 2025. If such question I had faced back in any of those previous three attempts, I would have maybe introduced it with a simple, the Harappan civilization was a civilization which began since this particular age and lasted till this age, and it was an architectural marvel. And then I would have written some, say, 7 to 8 points with respect to each city that I could recollect at that moment, say Lothal or any other. Those particular points I would have added. But then that this is what I've learned from my experience, that trying to substantiate each point each and every time, it would reduce my total number of points on those two pages. Say for example, I wrote around 7 to 8 points and I gave examples in maximum of them, say in six of them. So technically, these are occupying around 14 lines, 8 points and 6 examples. If I try to elaborate each example, then the points would still be 8 and the examples would be say 6 or 7. But this is what I've realized, in spite of doing a lot of value addition in those points or in those examples over the years through several different sources, through class material, through newspapers and whatnot, my scores haven't improved a lot. It's not that I'm completely missing the demand of the question or something. I've seen other people working with some different strategy and getting better marks than me. So the first thing is overemphasis on the quality content of the points uh, while compromising the number of points. Secondly, the syllabus, I I hadn't by-hearted the syllabus, and that is the reason why I couldn't answer very well some of the questions which were mentioned in the syllabus, but which I couldn't find in recent years PYQs, like the e-technology in the aid of farmers. I think this was a question in 2023 or 2024. I don't remember which, but because I hadn't made notes from the syllabus from each and every point, especially in GS3, it backfired. Such few questions here and there, so you tend to lose the advantage you could gain in such scoring questions, because I wrote an answer, but then again the number of points were also relatively low as compared to what people are writing nowadays on an average. On an average, people are writing at least 10 points. Those who get a good rank, at least 10 points in the 10 markers, and maybe 15 to 16 points at least in 15 markers. And this was the next mistake. And lack of completion of papers from page to page, this I had ignored this particular point because I thought that the papers would be checked very well
and whatever I had written, it would be read from word to word. Say, for example, if I had a value addition point which I had added from a particular class notes, say XYZ, which is a very, say any famous class, देन मुझे यही लगता था कि मतलब यार मेरा वो पॉइंट पढ़ेंगे और वो लोगों को अच्छा लगेगा, या फिर मतलब दे वुड सर्टनली रिवॉर्ड मी 1 मार्क एक्स्ट्रा, क्योंकि मैंने वो एग्जांपल लिखा है, वो काफ़ी करंट है. बट द ट्रूथ इज द टाइम इज सो लिमिटेड फॉर द पीपल इन यूपीएससी टू चेक दिस पेपर्स. दे हैव टू check these papers within a span of 2 months, including whatever बीच में holidays रहेंगे. They have certain fixed number of working hours, say 6 7 hours, and उसके बीच में 2 months के बाद they release the result. उसके पहले they will have at least have 2 weeks to collect all the data which of all the papers which have been corrected. उनको एक जगह पे एंटर करना पड़ेगा, फिर अगर वो लोग स्केलिंग करते रहेंगे तो स्केलिंग करना पड़ेगा. तो ये सब टाइम है. तो बेसिकली व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड इज they don't have a lot of time to go through each and every answer and each and every point in very detail. Plus they don't even have any incentive to do it, because it's not like they are getting paid very much. It's sort of a duty for them. So considering that fact, one of the measures which they will use to easily know whether a candidate knows a lot about the subject or not is the number of points or the amount of things he has written in the particular paper. If say I have written 7 or 8 good points, and some other candidate has written 6 or 7 good points, but also 6 or 7 other generic points connecting to the syllabus, whatever they might be. It might not be easily substantiated by example, but it has some or the other correlation to e-technology in the aid of farmers or something like that. Or maybe has made a certain short diagram, or has made a case study of a particular model and has put that into a square on the right hand side. This would surely add visibility and presentation factor to that particular answer. And because I didn't focus on those particular aspects, I just tried to stick to the demand of the question for each and every point in all of the papers. That is the reason why I had to leave a lot of blank spaces in the paper, GS papers, especially in GS2 last year. And another mistake which I committed is attempting the paper 15 markers first. When I started attempting 15 markers first, I always had a paucity of time to attempt 10 markers, and I always ended up getting just 60 to 65 minutes to attempt 10 markers, 10 markers, which boils down to 6 minutes or 6.5 minutes per question, which is relatively low. So my whole 10 markers used to always look like they are being rushed, and we don't know whether कि पहले 10 मार्कर्स चेक होते हैं, बाद में 15 मार्कर्स होते हैं, लीनियरली होता है पेपर, या हर सब्जेक्ट के लिए अदर मॉडरेटर्स है जो भी. बट वॉट आई हैव लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस एंड ऑल्सो आस्किंग वॉट माई फ्रेंड्स हैव रिटन इन अ पर्टिकुलर मैनर, उससे ये समझ में आया कि लीनियरली अगर इफ़ यू हैव रिटन इन अ गुड मैनर, even though your content might be more or less on similar lines, you will be rewarded if your first few questions look good, and maybe somewhere in the middle your paper goes a bit haywire. से बीच में के 10 मार्कर्स में एक दो गया एंड वापस 15 मार्कर्स में स्टार्ट लुकिंग गुड, देन ओवरऑल इंप्रेशन इफ दे आर बीइंग चेक लीनियरली इट वुड बी अ वेरी गुड वन. क्योंकि वही रहता है ना, कोई भी मूवी देखो, आप कुछ भी देख लो, उसका अगर स्टार्ट अच्छा है, एंड अच्छा है, थोड़ा बीच में बोरिंग भी हो गया, तो भी व्हेन यू विल कम आउट ऑफ थिएटर, तो आपको मोस्टली एंडिंग अगर अच्छे हो गए ना, तो आप बीच में के भूल भी जाते हो. जैसे अभी कोई मैच भी हुआ या फिर कुछ भी हुआ, अगर किसी ने फाइनल में भी खेल दिया, तो अगर पूरा सीरीज में भी नहीं खेला होगा, तो पीपल टेंड टू फॉरगेट इट. And this is naturally, this is something that will happen with any human, because it's normal basic biology से psychology कि end का ही अच्छे से याद रह जाता है. So also prioritizing the 10 markers first, partially, and then moving to 15 markers and doing some sort of juggling like that. I tried to attempt these papers. I'll tell you how I did it. And yes, the fifth point, exactly the same thing that I was saying, that I rushed the 10 markers.
Sixth point is optional paper. My optional paper became a sort of a hindrance for me. Even though I loved history optional a lot, I still do. But there was this problem since 2023 that कुछ ना कुछ एक सेक्शन बहुत टफ आ रहा था एंड वो ऑप्शनल में एज लेना becomes very difficult, and in general people from that particular optional weren't able to score very well. 2022 तक it was going good. 2022 तक even I had got 260 or something in optional, but then 2023 and 2024 में it went downhill. So उसकी वजह से 2023 में the mapping was very difficult in history optional, and 2024 में ancient medieval paper was on very unconventional lines. So it became a bit of a challenge, and that is the reason why I had to leave a lot of empty pages. And also in 2024, in some 10 markers, they had given 3 pages in history optional. So I had to strike down a lot of pages, and I think when you strike down a lot of pages, it leaves a very bad impression when the examiner is checking. Say there are 3 pages, you could just manage to write 1 page, and you struck down 2 pages, and again somewhere or the other this keeps happening. It will obviously completely shatter your impression, and whatever you might have written, again it will not be of any worth, because once a particular impression is made by the examiner, then it would be very difficult to change, because your paper and your handwriting and whatever your presentation is the only thing you, the way you can communicate to the examiner. आप वहाँ पे खुद नहीं हो, आप नहीं बता सकते कि मतलब ये क्वेश्चन में कम कंटेंट था, तो ये हम लोगों ने हम बुक से नहीं था, ये सिलेबस से बाहर, देयर विल नो वन, इट्स जस्ट यू एंड योर, इट्स जस्ट योर पेपर. सो वहाँ पे आई थॉट कि मेरे लिए तो एटलीस्ट ऑप्शनल वाजंट वर्किंग, और एम्प्टी पेजेस थे, तो इसलिए वो और बैकफायर कर गया था. एंड अनदर फनी पार्ट इज 2022 में आई हैड, मतलब तीनों अटेम्प्ट में मुझे सबसे ज़्यादा 2022 में ही आया, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में, जहाँ कम नॉलेज था. बट वहाँ पे ये था कि मेरी हैंड राइटिंग काफ़ी बड़ी थी, और इसकी वजह से मोर और लेस रिलेटिवली पेपर बेटर भर रहे थे, भले ही उतने पॉइंट लिखो या फिर 2024 से कम ही लिख रहा था. क्वालिटी ऑफ कंटेंट भी ऑब्वियसली आप सब लोग समझ ही सकते हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना ही मैनेज कर लोगे, कितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, देर आर गोइंग टू बी लिमिटेशंस. बट 2022 में ही मुझे सबसे रिलेटिवली ये तीनों अटेम्प्ट में 2022 में बेटर थे, बिकॉज ऑफ द सेम थिंग जो मैं अभी बोल रहा हूँ. वो तभी समझ में नहीं आ रहा था, बट अभी व्हेन आई लुक इन हाइंडसेट की पेपर रिलेटिवली ज़्यादा भर रहे थे, और ऑप्शनल में भी अगर 4 पेजेस भी है तो कुछ डायग्राम निकाल दो, कुछ कुछ तो करके आई वाज सम ऑफ फिलिंग द पेजेस. बट 2024 में आई टुक अ वेरी अननेसेसरी इंटेलेक्चुअल पाथ कि नहीं, मतलब पेजेस भरो या नहीं भरो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. सो आई आई वेंट विथ की क्वालिटी, एकदम सिर्फ क्वालिटी और क्वांटिटी. पेजेस छूट भी रहे, कट भी मार रहा हो तो भी ठीक है, दे आर गोइंग टू रीड ईच एंड एवरी पॉइंट, एंड दे विल give me the same marks that I have if I have written the same content in 1.5 pages. मैं सोचता था कि उतने ही मार्क्स देंगे जितना अगर मैं 3 पेजेस में लिखूँ वही कंटेंट, या फिर 1-1.5 पेज में लिखूँ, वो लोग तो कंटेंट पढ़ेंगे और फिर मार्क्स देंगे. बट नहीं, दैट इज़ नॉट हाउ वर्क्स. मेरे मार्क्स ट्रेंड से माई मार्क्स वेंट डाउन हिल, एंड आई हैव रियलाइज इट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स. सो ऐसे ऐसे में भी सेम फनी चीज़ हुआ है कि 2022 में आई हैड सम 100 के आसपास कुछ थे मार्क्स. अच्छे भी नहीं ज़्यादा, डिसेंट ही थे. बट देन टू मच कॉम्प्लेक्सिटीज स्टार्टेड गेटिंग एडेड इन माई एसेज इन 2023 एंड 2024. और उसके बाद बहुत फ्लावरी लैंग्वेज, और फॉर ये एंटीथेसिस लिखो, वो एंटीथेसिस, ये हिडन डायमेंशन, वो हिडन डायमेंशन, ये वो. और उसमें जो मेन ऐसे का जो थीम है, से 2024 में कुछ, तो हैप्पीनेस इज नॉट द डेस्टिनेशन, इट इज़ द पाथ, ऐसा कुछ तो ऐसा था. तो उसमें इफ देर आर 12 पेजेस, आई हैड रिटन से 6-7 पेजेस अबाउट हैप्पीनेस इज not the destination, it is the path or something. And then I had also written couple of pages about how happiness is also a destination and not a path, and what are the parallel dimensions to happiness. Like happiness isn't the sole goal, there will be also some other goals like contentment or say
compassion or something like that. And then I had written in a way forward kind of way in the end how to inculcate happiness and stuff. And I had used too much of intellectual introductions. I had mentioned some Western contemporary motivational speaker named Eckhart Tolle. If you guys have read about it, the power of I don't recollect his book, power of positive thinking or something, power of now, the power of now. बट वही है कि अभी आप लोगों को भी इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा. सो ऐसे में आई लर्न दिस थिंग दैट यू नीड टू मेक योर इंट्रोडक्शन यूनिक, बट इतना भी यूनिक नहीं बनाना कि उसके बारे में किसी ने सुना ही नहीं है, तो फिर नो वन विल बी एबल टू रिलेट टू दैट पर्टिकुलर एंटिटी, और फिर उसे वैसे मार्क्स मिलेंगे भी नहीं. तो मेरे मार्क्स जीएस में भी इसी की वजह से और ऐसे में भी दे हैव रिमेन मोर और स्टैग्नेंट. जीएस में 330 से 350 के बीच में ही रहा है स्कोर. सो दैट इज द रीज़न व्हाई आई कुडंट क्लियर इट इन द पास्ट अटेम्प्ट्स. सो how I changed this particular approach in 2025 mains is यहाँ पे I started focusing more on quantity and writing end to end. So the first thing after last year I found the topper stock of Ayan Jain sir, और उन्होंने उनके टॉपर स्टॉक में वही एम्फोसिस दिया है कि दे ही एम्फोसाइज्ड अ लॉट ऑन क्वांटिटी ऑफ पॉइंट्स rather than just focusing on the quality. But I tried a bit of balanced approach. I didn't go all out on a lot of points. I didn't go out like 15-16 points नहीं हुए मेरे 10 मार्क्स में. मे बी 13 के आसपास आ रहे थे, 13-14. एंड आई स्टार्टेड राइटिंग एंड टू एंड. दैट इज अगर पूरी कॉपी दी है ना तो पूरे मतलब 2 पेजेस दिए तो पूरे एंड तक भरना चाहिए. और अगर समझ रहे कि इसमें नहीं है कंटेंट तो वही तो बीच में एक छोटा सा कुछ तो डायग्राम फ्लो चार्ट कुछ तो बना दिया. So that is how I try to balance the quantity and quality का aspect. And in 15 markers I have written on an average say 22 to 23 points at least. टेस्ट में एक्चुअली मेरे ज़्यादा भी जा रहे थे, 25 के ऊपर तक जा रहे थे, बट एक्चुअल पेपर में थोड़ा सा टाइम कंस्टेंट एंड ऑल स्टफ, तो 23 पॉइंट्स ऑन एवरेज फॉर 15 मार्कर्स एंड 13 to 14 पॉइंट्स फॉर 10 मार्कर्स. ऐसा मैंने ट्रेंड रखा है इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर द क्वेश्चन इज आस्किंग. एक हाथ क्वेश्चन में अक्रॉस ऑल जीएस पेपर्स एक हाथ क्वेश्चन में ही 10 कुछ पॉइंट्स आए थे, कम 10-11. बाकी तो इट वॉज प्रिटी डिसेंट. एंड देन नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी. जो मैंने बोला था कि मैंने पूरा सिर्फ ये नहीं किया कि सिर्फ क्वांटिटी क्वांटिटी क्वांटिटी, थोड़ा सा क्वालिटी की मतलब एटलीस्ट कुछ एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट कर दिया, भले ही काफ़ी जेनरिक पॉइंट था बट उसको फिर ज़्यादा एलेबोरेट नहीं किया. सो इट इज़ लाइक आई एम गिविंग हिम से 13 पॉइंट्स, और उसमें से आई हैव रिटन अराउंड से 6-7 एग्जाम्पल्स और समथिंग. उसमें अगर कुछ जमा तो फ्लो चार्ट है, फिर कुछ एक ऐसा केस स्टडी स्क्वायर बना के, और इंट्रो कंक्लूजन में काफ़ी मतलब अगर हिस्ट्री बेस्ड रहेगा तो फिर उसका टाइमलाइन अप्रोच एंड अदर थिंग्स. एंड कंक्लूजन में आई वुड से वे फॉरवर्ड, जैसा कि if it is about some Mughals, then in the end I would write about how it led to the fall of Mughals and from the ashes of the Mughal Empire rose the British Empire या फिर the regional dynasties, ऐसा कुछ तो समथिंग थोड़ा सा अच्छे लैंग्वेज में. एंड वे मतलब आपको अगर चाहिए तो आई कैन टेल यू हाउ आई अप्रोच इन जनरल द इंट्रोडक्शन फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. दैट कैन ऑल्सो बी समथिंग दैट आई कैन हेल्प यू विद. एंड अगेन थर्ड पॉइंट आई डिड इज सिलेबस कंप्लीशन. सिलेबस बाय हार्ट कर दिया इस बार. जो भी छोटे मोटे नोट्स बचे थे एग्रीकल्चर टॉपिक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर जो भी था, तो आई ट्राई टू कंप्लीट इट. कि नैनो टेक्नोलॉजी इस बार पूछा था 2025 में इन एड ऑफ फार्मर्स, और ऐसा मतलब बेसिक गलत नहीं होने चाहिए वैसा मैंने ये किया था. तो इट हेल्प. नैनो टेक्नोलॉजी में भी आई कुड राइट अराउंड 22 पॉइंट्स और समथिंग विद अ गुड रियल लाइफ केस स्टडी एग्जाम्पल. So this was pretty good this time. And attempting of paper, मेरा strategy इस बार ऐसा था कि I used to attempt first 4-10 markers, and then I used to attempt 10-15 markers, and then last में I used to attempt the remaining 6-10 markers. तो वो भी मैंने ऐसा किया था कि एक हाथ जो 10 मार्कर जो मैं एकदम लास्ट में अटेम्प्ट करूँगा,
I'll attempt it in maybe 3 or 4 minutes. और वो एक आध मिनट तो मिल जाता है जब तक वो मॉडरेटर पेपर कलेक्ट करने आ जाते हैं तब तक। तो उसे 3 और 4 मिनट्स में मैं आई शू अटेम्प्ट द लास्ट क्वेश्चन। एंड उसमें ऑल्सो आई ट्राइड इन ऑन अ मैक्सिमम लेवल टू रीच टिल एटलीस्ट 12 पॉइंट्स और समथिंग लाइक दैट। तो उसमें आई डिडंट यूज टू ज़्यादा एलेबरेट और समथिंग। उसमें मे बी आई आई हैव स्किप्ड द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन शायद, उसमें कहीं कहीं पे। और मैंने वही किया था कि 19 क्वेश्चन जो है, जो 10 मार्क 10-15 मार्कर्स और 9 10 मार्कर्स, आई राइट इट टू द मतलब एकदम खचाखच भर के। और एक जो 10 मार्कर है इट इज़ फाइन, आई जस्ट इंक्रीज द बिट ऑफ स्पेसिंग एंड फॉन्ट एंड आई स्टिल कवर बोथ द पेजेस। मे बी आई राइट सेम 12 पॉइंट बट फिर थोड़ा सा लेस एलेबरेट करके, बट आई कंप्लीट ऑल द पेपर्स वैसे। देन डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, जो एटलीस्ट मेरे हर पेपर में एक्सेप्ट जी एस टू में थोड़े कम आए, 4 से 5 ही है डायग्राम्स या फ्लो चार्ट, ज़्यादा स्कोप भी नहीं रहता। डायग्राम फ्लो चार्ट इन अदर पेपर्स GS 1, 3, 4। और मैंने इस बार ऑप्शनल चेंज किया था, सोशो लिया था मैंने। तो सोशो में भी इवन आई डिड अराउंड 8 to 9 डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स और समथिंग लाइक दैट इन ईच पेपर, पेपर 1 पेपर 2। और सिर्फ GS 2 में छोड़ के बाकी मेरे डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स काफ़ी बेटर थे। इवन कुछ कुछ केस स्टडी में मैंने बनाया था, क्वार्टेट ऑफ वर्चूज बोल के एक डायग्राम बना था। सो आई टू शो दिस 4 वर्चूज विच आर एसेंशियल इन दिस पर्टिकुलर केस स्टडी। और समथिंग वैल्यू प्रायोरिटी डायग्राम इन अ बार ग्राफ फॉर्म, कि पहले मैं किन वैल्यूज़ को प्रायोरिटाइज करूँगा, ऐसे 2-3 वैल्यूज़ को, ऐसे कुछ तो मतलब कुछ तो। इट डजेंट हैव टू मेक अ लॉट ऑफ सेंस। इट जस्ट इट जस्ट शुड फील टू द एग्जामिनर कि कुछ तो एफर्ट दिया है। एफर्ट के भी मार्क्स है एज फार एज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। क्योंकि मेरी लास्ट ईयर एक फ्रेंड थी, शी हैड गॉट अ रैंक। सो उसने वही अप्रोच यूज़ किया था यार, मतलब इवन दो शी डिडंट नो लॉट अबाउट द ट्विस्टर का क्वेश्चन, शी wrote some or the other thing in those 3 pages. I didn't write. I just thought that UPSC will reward my honesty because I don't know what a twister is. I just wrote some half page और बाकी के 2.5 pages मैंने छोड़ के क्रॉस आउट कर दिया था। उसने कुछ तो लिख दिया था यार, मतलब कुछ तो साइक्लोमिक्लो कुछ भी करके 3 पेज भर दिया था। शी गॉट प्रीटी डिसेंट, 90+ में मिले थे उसको मार्क्स इन GS 1। एंड मेरा ऑनेस्टी को तो किसी ने रिवॉर्ड नहीं किया था। इट्स फाइन। we get to learn a lot of things about how actually things function versus how we perceive them। और या फिर हम लोग जैसा सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए और एक्चुअल में कैसा होता है, इसमें बहुत फ़र्क रहता है। बट वही है कि सिंस यूपीएससी डजेंट officially tell anything about its checking process or like anything, you have to make conjectures, you have to understand from your own experiences and the experiences of others। that is the only way। एंड इस बार मैंने प्रेजेंटेशन और विजिबिलिटी ऑफ द पेपर पे भी बहुत ध्यान रखा है कि नॉट जस्ट वॉट आई हैव रिटन बट हाउ इट इज़ बीइंग सीन। वो अच्छे से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। इजीली मेरे 2 सब हेडिंग्स है, अगर फॉर एंड अगेंस्ट कोई भी से जीएस के टॉपिक में, कि विल दिस रिफॉर्म हेल्प, यस, नो एंड वे फॉरवर्ड। अगर ऐसा है तो वो तीनों अच्छे से दिखने चाहिए। एंड दे शुड हैव अ पर्टिकुलर नंबरिंग सीक्वेंस, कि अगर मेरे हेडिंग्स को ए बी और सी है तो उसके अंदर जो सब मतलब पॉइंट्स रहेंगे, फॉर में 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट नंबर हुए, और फिर अगेंस्ट में 1 2 3 4 5 6 जो भी रहेगा, या फिर वे फॉर में 1 2 पॉइंट। तो ऐसे करके विजिबिलिटी का मैं इंश्योर कर रहा था। मैं वो भी आपको आगे उसके बारे में बताऊंगा। और ऐसे इस बार मैंने ये किया कि काफ़ी सिंपल रखा और काफ़ी रिलेटेबल एग्जांपल्स देने का कोशिश किया। एंड आई ट्राइड वेरी मच टू रिस्ट्रेन कि कुछ वेस्टर्न ज़्यादा थिंकर्स डाल दूँ, या फिर वेस्टर्न कुछ कुछ हटके कुछ एकदम ही ज़्यादा ऐसा एग्जांपल दे दूँ जो किसी को नहीं पता है, बट फिर वो एग्जामिनर को भी नहीं पता तो रिलेटेबल नहीं होता, तो आई डोंट थिंक इट इवन काउंट्स। तो उसके लिए कुछ टॉपिक से रेलेवेंट होना चाहिए। तो इस बार कुछ था कि वी लर्न फ्रॉम द बिटर थिंग्स आर द बेस्ट एक्सपीरियंसेस, ऐसा कुछ तो था। तो उसमें आई रोट अ वेरी रिसेंट सॉरी अबाउट दैट। आई रोट अ वेरी रिसेंट इंट्रोडक्शन ऑफ मोहम्मद सिराज, जो इंडिया का ऑस्ट्रेलिया का इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट मैच हुआ था। तो उसमें बिटर थिंग वाज कि ही वाज ड्रॉप फ्रॉम द चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड एंड फिर ही गॉट पिक्ड इन इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज। तो एंड ही इवेंचुअली प्रूव टू बी मैच विनर इन द लास्ट मैच।
So how that bitter experience of being dropped from the Champions Trophy proved to be the best experience for him because he trained hard and then he was able to ensure his redemption. So ऐसा कुछ तो और एक इसमें इंट्रोडक्शन मैंने शायद 3 इडियट्स का दिया था दूसरे इसमें कि लाइफ इज नॉट द डेस्टिनेशन, इट इज़ द जर्नी, ऐसे टाइप का कुछ तो था वापस, मतलब 2024 का ही टॉपिक जैसे रिपीट किया था ऐसा लग रहा था, वही तो सेक्शन बी में। उसमें मैंने 3 इडियट्स का एग्जांपल कुछ दिया था, वो कैरेक्टर्स का मेंशन करके कि हाउ दे हाउ मतलब तीनों का अप्रोच अलग है कि जिसने लाइफ को एज अ जर्नी देखा, हाउ ही वॉज एबल टू रैंचो, हाउ ही वॉज एबल टू फेयर वेल इन हिज कॉलेज और इन स्टडीज और इन लाइफ इन जनरल, एंड हाउ द अदर्स दे couldn't मतलब do very well because they took life as a destination and took it too seriously, ऐसा कुछ तो। एंड आई यूज रामायण महाभारत एग्जाम्पल्स इन बोथ द एसेस, कुछ ना कुछ तो मैंने इंडियन माइथोलॉजी, इंडियन एपिक से ऐड किया था, सो ताकि रिलेटेबल हो पाए। इस बार मैंने ऐसे काफ़ी सिंपल लिखा था, एंटीथेसिस भी अगर लिखना भी है तो भी वो मैंने एक ही पेज लिखा था, बट बाकी के 12-13 पेज द टॉपिक के ऊपर ही और आजू बाजू के उसके बारे में ही लिखा था। आई डेंट डाइवर्स फ्रॉम द टॉपिक। एंड इस बार ऑप्शनल मैंने ऐसा बोला कि आई चेंज दिस ऑप्शनल लास्ट ईयर लिटरली सितंबर 30th को कुछ तो ख़त्म हुआ एग्ज़ाम, अराउंड 5:30 पेपर ख़त्म हुआ ऑप्शनल। मुझे समझ गया था कि पेपर 1 अच्छा नहीं गया था, सो आई रियलाइज सम हाउ कि और एट अटेम्प्ट तो एटलीस्ट जाने वाला है। सो आई केम आउट ऑफ द एग्ज़ाम हॉल एट अराउंड 6 o'clock। आई कॉल्ड वन ऑफ माई फ्रेंड एंड मैंने सोशो ऑप्शनल का पूरा उनसे जो भी था रिसोर्सेस वो मंगवा लिया था। विद इन हाफ एन आवर और 1 hour आई हैड रियलाइज कि और एक अटेम्प्ट लगने वाला है। फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम October 1st ऑनवर्ड्स, आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर सोशो ऑप्शनल एंड वो मैंने कुछ कंप्लीट कर लिया 5 months में। मेनली PYQs बेसिस पे ही फोकस था, तो उस पर भी मैंने वही किया है इस बार लिखते वक्त कि आई कंप्लीटेड द पेपर पूरा। क्वांटिटेटिव पॉइंट्स ज़्यादा रखे हैं, अराउंड 9 to 10 पॉइंट्स इन 10 मार्कर्स एंड अराउंड 15 to 16 पॉइंट्स इन 15 मार्क, सॉरी 20 मार्कर्स सोशो में। सब में एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट नहीं किया ऑब्वियसली, से अराउंड एटलीस्ट 4-5 एग्जाम्पल्स पर आंसर, समथिंग लाइक दैट। तो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन्स काफ़ी ध्यान रख के लिखे, और जो मेन सिलेबस के थिंकर्स है उन पे ज़्यादा फोकस किया रादर देन कुछ बाहर के नए थिंकर्स लाने से। दिस इज माई होल जर्नी, हाउ आई हैव अटेम्प्टेड द 2025 मेन, व्हाट आर माई फ्यूचर प्लान्स। सो राइट नाउ आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स एंड होप कि ये सब जो इतना स्ट्रैटेजी में जो आपको ज्ञान दे रहा हूँ वर्क करे, एंड लेट्स सी उसके बाद नाउ हाउ आई कैन हेल्प यू गाइज विथ जो भी मेरा एक्सपीरियंस, जो भी मेरे गलतियाँ रही है पहले। सो डिटेल्ड एनालिसिस आई कैन डू ऑफ GS पेपर 1, 2, 3, 4 दिस ईयर का 2025, थोड़ा थोड़ा 10 क्वेश्चंस का ऐसा डिवाइड करके आई कैन मेक दोज वीडियोज सो दैट दे आर नॉट सो लॉन्ग। ऐसे what I actually wrote in the exam, what examples I used, how I used the introduction, conclusions, जो भी वो उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। बिसाइड GS पेपर में प्रेजेंटेशन विजिबिलिटी कैसे आई ट्राई टू इम्प्रूव, मे बी आई कैन शो यू सम ऑफ माई ओल्ड कॉपीज एंड अभी मैंने कैसा, मतलब क्या डिफरेंस है मेरे अभ्यास के कॉपीज, वी कैन चेक, मतलब उसमें कैसा फ़र्क आ रहा है। एंड एन ऑप्शनल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सोशो अगर किसी को जानना है तो हाउ आई डिड इट इन 4-5 months, एंड कैसे अटेम्प्ट किया मैंने पेपर, कैसे चूज़ किया, कैसे पेपर 1 पेपर 2 बैलेंस करके इंटीग्रेट करने की कोशिश की, या फिर करंट एग्जाम्पल्स, या फिर वॉट एवर कोचिंग क्लासेस, मॉक पेपर्स, हाउ मच आई गिव, वो सब वो भी एक है। तो आप मे बी यू कैन शेयर कि इन तीनों में से GS पेपर्स ऐसे या फिर ऑप्शनल क्या पहले आपको चाहिए होगा, तो यू कैन टाइप इट आउट इन द कमेंट, देन आई कैन मेक अ वीडियो ऑन इट। थैंक यू वेरी मच।